Students, this is the fourth video of lesson 1, class 7. The name of the chapter is The Louse and the Mosquito. It has been written by Vikram Seth, and in this lesson, we are going to complete the question and answers given in this poem. So now, without any delay, let's start. Question number 1A. Comment on the names given to the mosquito and the louse. It means you have to name a specific name given to the mosquito and louse in this poem. The answer is the name given to louse is creep and the name of mosquito is clabby. You may name other also. You may also call leap to the mosquito. The louse has been named creep because it creeps or crawls and is a sly, while the mosquito is flying insect and has been called as leap. So these two things, these are the names given to the louse and the mosquito. Let's move to the question number B. How do you know that the louse family was a large one? Answer would be the word clan and the name of the relatives. If you will have a glance upon the poem, you may come across with the words like sons and grandsons, sisters and brothers, great-granddaughters, great-grandmothers, etc. So this all shows that louse family was a large one. Let's move to the question number C. What is so special about royal blood? It means what does the royal blood contains which makes it so special? Royal blood contains the ginger, honey, cardamom and other spices which could relieve aches and pains according to mosquito. It means according to mosquito, the royal blood was an antibiotic. Now let's move to question number D. Who is the self-willed bumbler under reference? Answer is the self-willed bumbler has been referred to the mosquito in this poem. Students, let's move to question number E. The question is, jot down the character qualities that you would attribute to the mosquito and the louse. It means you have to write down, you have to sketch the characteristics of mosquito and the louse. I have written the creep. The louse creep has been portrayed as a weak character who seems to be not confident. लाउस जो कैरेक्टर है वो इस पोएम का वो कॉन्फिडेंट नहीं है. सी इजली बिलीव्स ऑन मॉस्किटो, वो जल्द ही मॉस्किटो के ऊपर विश्वास कर लेती है. एंड एज अ रिजल्ट सी हैड टू रिपे इट फॉर हर लाइफ्स एंड फैमिली. और विश्वास करने के कारण ही उसे अपनी जान और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार की जान को गंवाना पड़ता है. वाइल द विली मॉस्किटो एस्केप्स, और जबकि वो बातूनी जो मॉस्किटो रहता है, जो कॉन्स्पिरेटर रहता है, वो भाग निकलता है. सो द वर्ड्स लाइक इनोसेंट, टेंडर हार्टेड सूट्स ऑन लाउस. तो इनोसेंट और टेंडर हार्टेड जो शब्द हैं वो लाउस के लिए परफेक्ट होते हैं. सेकेंड मॉस्किटो है. द मॉस्किटो हैज बीन फ्रेम्ड एज अ डेविल कैरेक्टर हु बिट्रेज द लाउस एंड द फैमिली. जो मॉस्किटो है वो एक डेविल कैरेक्टर है जो कि लाउस और उसकी फैमिली के साथ विश्वासघात करता है. डिस्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय लाउस, द जॉन्टी मॉस्किटो डिडंट पे अटेंशन. स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी मॉस्किटो लाउस के द्वारा दिए गए बातों पर ध्यान नहीं देता है. द वर्ड्स लाइक अनट्रस्टवर्दी, सेल्फ विल्ड सूट्स इन मॉस्किटो. तो मॉस्किटो के ऊपर अनट्रस्टवर्दी यानी विश्वासघाती और सेल्फ विल्ड यानी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि मॉस्किटो के ऊपर शूट करते हैं.
Now let's move to the question number F. What is the hidden message in this poem? यानी इस पोयम में छिपा हुआ संदेश क्या है? इस पोयम में कवि ने यानी विक्रम सेठ ने क्या मैसेज देना चाहा? The hidden message of the poem is that we should not believe on anybody blindly. हिडन मैसेज यही है कि हमें किसी के भी ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए. हॉस्पिटलिटी इज नॉट लेटिंग योर ओन फैमिली इन रिस्क. मेहमानबाजी का अर्थ ये नहीं कि आप मेहमान के बारे में जानते हुए भी अपने परिवार को खतरे में डाल दें. इफ यू आर वेल अवेयर अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गेस्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि आपको गेस्ट के कैरेक्टर के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में आपको पता है और इसको जानते हुए कि ये हुए भी ये आपके परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, तो उस परिस्थिति में आप उसे ना कर दें, प्रतिष्ठा में प्राण न दें. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर जी. Who was the mosquito able to? How was the mosquito able to escape detection? मॉस्किटो कैसे बच गया? तो मॉस्किटो उड़ गया. मॉस्किटो फाइल्ड द डिटेक्शन बाय हिडिंग हिमसेल्फ इन कैनोपी. यानी मॉस्किटो उड़ गया और वो जाकर के कैनोपी में छिप गया और इस प्रकार से वो लोगों की नजरों से बच गया. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर H. Do you think the louse had done the right thing by being kind to the mosquito? क्या आपको लगता है कि लाउस ने जो काइंडनेस दिखाया मॉस्किटो के प्रति वो अच्छा कदम था? No, I don't think that louse had done right thing by being kind to the mosquito. नहीं, मुझे नहीं लगता कि लाउस ने मॉस्किटो के प्रति दया दिखा करके कोई अच्छा काम किया. यदि आपको लगता है हाँ है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के यस जरूर लिखें. नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर आई. व्हाट डू यू थिंक इज मोर हार्मफुल, द लाउस और द मॉस्किटो? इन माई ओपिनियन द मॉस्किटो इज मोर हार्मफुल देन द लाउस. मेरे विचार से मॉस्किटो जो है वो लाउस की अपेक्षा में ज्यादा हार्मफुल है. बिकॉज बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो मे कॉस्ट ह्यूमन लाइफ. क्योंकि मच्छर का काटना वो ह्यूमन लाइफ बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है, बट लाउस डजंट. लेकिन लाउस का काटना जो है आदमी की जीवन नहीं ले सकता. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर जे. कैन यू रियली ब्लेम द मॉस्किटो फॉर द डेथ ऑफ द लाउस फैमिली? क्या लाउस के फैमिली का जो मृत्यु हुई उसके लिए मच्छर को दोषी ठहराया जा सकता है, मॉस्किटो को दोषी ठहराया जा सकता है? मेरे विचार से आई विल ब्लेम लाउस द क्रिप फॉर देयर ओन डिस्ट्रक्शन. मैं लाउस जो क्रिप था उसके ऊपर इस विनाश का ब्लेम डालना चाहूंगा. इफ दे हैड नॉट लेट द मॉस्किटो बी देयर गेस्ट दे कुड सर्वाइव. यदि उन्होंने मॉस्किटो को अपना गेस्ट नहीं बनाया होता तो वो बच सकते थे. So students, these were some of the question and answers for today. We will talk more in the next video. Till then, it's time to see you. Bye. Thank you very much.